morning, kids. Welcome to the third lesson of your OC, Entrepreneurship Development. Now, let's have a look towards characteristics. Characteristics of, we can say, entrepreneurship. Entrepreneurship. आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या होती है. द फर्स्ट वन इज इनोवेशन. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज innovation. Entrepreneurship is an innovation. The introduction of innovation means what? By launching new ideas, new technologies. है ना? Innovation means what? Always to do some creative. Yeah, we can say creativity. Now, innovation means what? The introduction of new combination of various factors of production in innovation. A product is arrives in the market, uses new production technologies, yeah, we can say discovers new sources of supply of raw material and opens a new market for specific products. Now, with the help of innovation, yeah, by providing new ideas, new technologies, creative, we can say creative or creativity in products, by changing, we can say, by changing the existing products, by changing the, we can say, existing products. All these are involved in, we can say, your process of innovation. Means, as we are selling the, we can say, something in market, so we have to provide something new, something different, or something extra as compared to other competitors. Then only it will help us in increasing sales in the market and to face, we can say, to face the competition in the market. ओके अब हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर आ जाता है कि इनोवेशन, है ना. थिंक डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली और बिहेव डिफरेंटली, थोड़ा सा हटके, दूसरों से थोड़ा सा अलग. जब एक बिजनेसमैन मार्केट में न्यू आइडियाज लाएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज लाएगा, वी कैन से अपनी चीजों को क्रिएटिव बनाएगा, है ना, बाय एडिंग सम क्रिएटिविटीज इन इट, और वी कैन से जो भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी जो मार्केट में चल रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोडक्ट्स है जिन्हें हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बोल देंगे, उन प्रोडक्ट्स के भी अंदर कुछ चेंजेस कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा सेल्स इंक्रीज होगा. और सेल्स अगर हमारा इंक्रीज हो गया तो easily will compete in the market, yeah, easily will compete with the competitors, and all these things will result in achieving desired goals. Now, all these things will result in, we can say, achieving desired goals of your organization. आइए देखते हैं हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का. The next one is economic activity. Okay, guys, the next one is, we can say, economic activity. An entrepreneur produces new products for the customer as per their needs. Economic activities means what? Producer produces the goods as per, we can say, needs, wants, and we can say requirements of the customer की जरूरत के हिसाब से, वी कैन से, एक प्रोड्यूसर चीजों को प्रोड्यूस करता है या चीजों को बनाता है ना. ही फील्स द नीड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एज वेल एज इन एक्सचेंज टू अर्न अ बेटर लाइवलीहुड. Okay, why a producer is producing a thing as per the needs, wants, and requirements of the customer, as customer
customer is king of market. Okay, as customer is a king of market, and it's a prime responsibility of a producer to fulfill the needs of, yeah, to fulfill the need, or we can say to satisfy the needs of customer. ओके, अब हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है कि एक प्रोड्यूसर को वही चीजें बनानी होगी जो एक कस्टमर वी कैन से उससे चाहता है, या उनको किस चीजों की जरूरत है, या वो क्या चीज एक्चुअल में चाहते हैं। क्योंकि कस्टमर जो है पूरा के पूरा वी कैन से सिस्टम बॉक्स एंड में किंग, हमारा जो मार्केट का किंग होता है कस्टमर, उसी पे डिपेंड होता है। जब हम हमारे कस्टमर की नीड्स को इजीली सेटिस्फाई कर देंगे, या जो भी चीजें उस बंदे को चाहिए इजीली हम लोग उस चीज को उसकी तरफ दे देंगे, तो इसे ही हम लोग बोल देंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हम उसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर देंगे, तो इजीली इट विल रिजल्ट इन वी कैन से मैक्सिमाइजिंग योर सेल्स, maximizing your sales. All these things will help you and we can say maximizing your sales, increasing your profit amount. है ना? It's a systematic and planned activity as per the skills and knowledge of entrepreneur. Now it's a we can say systematized planning. It is a systematically planned activity as per the skill and knowledge of an entrepreneur, how to tackle या हाउ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कैसे एक बंदे की जरूरतों को पूरा करे और अपना जो सेल्स है मार्केट में औरों के कंपेयर में कैसे बढ़ा ले। दिस इज अनदर फीचर ऑफ दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, व्हिच इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। आइए देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट जो हमारा है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इट्स एन एक्टिविटी वेयर वेरियस वी कैन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। नाउ इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Okay, as I told you, the factors of production are land, then labor, then capital, and then the last one, your entrepreneur. Okay, a group of four things together is known as factor of production, and the another characteristics of entrepreneurship is to organize the factor of production in systematic way or systematic manner. हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप का, वो होता है कि हमारे जो भी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग बोल देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, और लास्ट वाला हमारा एंटरप्रेन्योर, जैसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ओनर। ठीक है, अब हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बच्चों इन सारे वी कैन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, तो जिससे हमारी वी कैन से अगर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो क्या होगा कि वी हैव टू कलेक्ट और गैदर ऑल दीज थिंग्स अंडर वन रूफ। If all these things are, we can say, allotted or organized under one roof, so but of course you will earn profit, yeah, you will achieve your desired goal, yeah, we can say your target. As the success of every, we can say, manufacturing unit is depends upon the factors of production. So if all these factors of production are under one roof, so easily you'll be, we can say, you'll be earning or you'll be having, yeah, you'll be achieving a desired goals or desired targets for your organization. Move on to the next point guys, which is your fourth one, है ना, creative activity. Next one is, we can say, creative activity. Innovation should have a strong support of creativity. Innovation is a, we can say, strong support for
Creativity means we can say new innovations, new technologies, new methods of working. क्रिएटिव एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा बच्चों कि हमने हर बारी वी कैन से अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज लानी चाहिए, न्यू टेक्निक, न्यू मेथड या डिफरेंट टेक्निक आइडियाज मार्केट में अगर हम लोग वी कैन से डालेंगे तो बट ऑफकोर्स इससे हमारी वी कैन क्या होगी नाउ इफ वी आर, अगर हम लोग इन सारी चीजों को इकट्ठा कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन बाहर निकल के आएगा, whatever production is out in producing, so we are producing something new, yeah, we can say something different as compared to other competitors, है ना, as we are putting, as we are taking so many innovations, as we are using so many new techniques, as we are following या using new methods, है ना, in the production process, तो जो सामने निकल के आएगा, so the outcome of it is something new and something different as compared to others. अगर हम लोग ये सारी चीजें क्रिएटिविटी से अच्छे से कर ले बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि हम बहुत ही अच्छी और वी कैन से सबसे हटके कोई चीज मार्केट में बना लेंगे. Thus, creativity is an essential part of entrepreneurship. That's the main reason why creativity is essential part of entrepreneurship. हर एक बिजनेसमैन को क्रिएटिविटी दिखानी ही होगी, तभी वो मार्केट में टैकल कर पाएगा या टिक पाएगा. आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप. द फिफ्थ पॉइंट इज managerial skill and leadership. Now, an entrepreneur, we can say, an entrepreneur have some managerial abilities or managerial skills to get the work done, to, we can say, get the work done, to get the work done by others. दूसरों से काम करवा के लेना, we can say, वो उस बंदे को आना चाहिए. अगर वो बंदा दूसरों से काम करके लेने में एक्सपर्ट होगा तभी, या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना, हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, हाउ टू कंट्रोल द एंड ऑल दीज थिंग्स वी सॉरी एक एंटरप्रेन्योरशिप को आनी चाहिए मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडर. ओके, so managerial skills means to get the work done by others, to get the work done by others by motivating, by controlling, or we can say by organizing the things for them. This is another, we can say, characteristic of entrepreneurship. You have managerial skills and leadership skills. Means how to get the work done by others. Move on to the next point, guys, which is the sixth one, skillful management. Sixth one, skillful management. Now, let's have a look towards another, we can say, entrepreneurship. Another characteristic of entrepreneurship is, we can say, skillful management. The success of any entrepreneurship depends on the management of the organization. The success of, we can say, every business is totally depends upon the management. The success of each and every, we can say, the success of every business is totally depends upon the management. Means if management is skillful, then it's very easy to earn, to achieve a desired goal, desired target, yeah, we can say desired things in the organization. अब एक मैनेजमेंट जो है बच्चों वो स्किलफुल होनी चाहिए. मतलब कि मैनेजमेंट क्या होती है बच्चों, मैनेजमेंट इज नथिंग बट वी कैन से हाउ टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, है ना, हाउ टू कंप्लीट दिस टास्क, हाउ टू अबाइन वर्क, ऑल दिस थिंग्स या अ कॉम्बो ऑफ दीज थिंग्स इज नोन एज मैनेजमेंट. अब अगर हमारी कंपनी की मैनेजमेंट स्किलफुल रहेगी या बहुत अच्छी रहेगी, तो बट ऑफकोर्स जितनी मैनेजमेंट अच्छी होगी उतनी ही हमारी कंपनी की सक्सेस, वी कैन से हमारी कंपनी की सक्सेस
माइक्रो मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है या वीकेंड से बहुत सारे एफर्ट्स दे दिए तो हमारे वीकेंड से टारगेट्स को अचीव करने से हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा. Move on to the next one, guys, which is risk bearing. The next one is, guys, risk bearing. Now, risk means what? That entrepreneur is an agent who buys factor of production. Now, entrepreneur is a person. Entrepreneur is the person who buys factors of production. एंटरप्रेन्योर जो है बच्चों वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है या वीकेंड से खरीदता है एट सर्टेन प्राइसेस. एट वीकेंड से सर्टेन प्राइसेस in order to combine them into a product, and again to sell them in the market. For now, in order to, for example, एक जो हमारा एंटरप्रेन्योर रहेगा बच्चों वो चीजों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसों से खरीदता है, कुछ कीमत के ऊपर वो पैसों को खरीदता है. देन वो उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंड आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर चीज को मार्केट में सेल करता है या बेचता है फॉर फ्यूचर प्राइजेस. एंड नाउ another point of it is risk bearing. As the person is investing more amount on a risk basis, as the person is investing large amounts in business या on large risk, तो उसको भी कैसे बेनिफिट भी उससे मिलने वाले बहुत अच्छे रहेंगे. That is more risk, we can say more risk, more gain. सुना है ना कि डर के आगे जीत है. जब बंदा रिस्क बेसिस के ऊपर जितने पैसे बिजनेस में लगाएगा या इन्वेस्ट करेगा तो उसको उससे मिलने वाला गेन या उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा. तो यही था हमारा अगला वाला पॉइंट जिसे हम बोलेंगे बच्चों रिस्क बेयरिंग. एंड लास्ट वन इज गैप फिलिंग फंक्शन. The next one is लास्ट वाला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योरशिप का बच्चों वो है मेरा गैप फिलिंग फंक्शन. आइए देखते हैं कि गैप फिलिंग फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है. एक जो एंटरप्रेन्योर होता है बच्चों उसका जॉब जो होता है वो गैप को फिल करना होता है और जितनी भी वीकेंड चीजें अवेलेबल नहीं है या है उन सारी चीजों को वीकेंड से पर्टिकुलर फैक्ट्री में या प्रोडक्शन प्रोसेस में लाके देना होता है. नाउ एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑलवेज रेडी टू फिल द गैप between the production department and a two sales department. Means he is the person who is filling the gap between production department to sales department. कि production department में क्या क्या चीजों की कमी है जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट जो है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है या मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बन पा रहा है. ये सारी जो चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीजें लगेगी. मुझे लगेगा रॉ मटेरियल, उसके बाद में मुझे लगेगी मशीन, देन आई नीड लेबर्स ओवर देयर, देन आई नीड स्किल्स, टेक्निक, ऑल दीज थिंग्स. तो हमारा ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, ओनर होता है, ये इन्हीं गैप्स को फिल करने में मदद करेगा कि जो भी चीजें हमारे पास में नहीं है या अवेलेबल नहीं है वो उन सारी चीजों को, उन सारे नॉलेज को प्रोडक्शन फंक्शन के डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अवेलेबल करवा के देगा जिससे कि हमारी कंपनी का सेल इंक्रीज हो जाएगा और इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिलिंग द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. सो दिस इज वी कैन से फॉर टुडे characteristics of entrepreneurship. Thank you so much.